So I was telling you कि three types of question they come from this topic. MCQs में बेटे आएगा तो they ask you about differentiation about scalar and vector. आपसे पूछेगा भाई इसमें चूज करें कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर लाइक दैट. या थ्योरी में आएगा तो डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, या नेम्स ऑफ क्वांटिटीज लिखने को आ सकता है. सेकंड बेटा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो डेफिनेशन का आता है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पूछ लेता है कभी कभी एमसीक्यूज में भी और थ्योरी में भी. और उसके बाद बेटा ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, राइट. मतलब क्वेश्चंस आएंगे उसमें Yeah, ग्राफ, sir. या ग्राफ मेंशंस होंगे एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द बेस ऑफ ग्राफ्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. One is called scalar, the other is called vector. Do you know the difference between them? Yeah, sure. The vector quantity has a direction and the scalar quantity does not have a direction. Very good. So And what you have to memorize now, you have to memorize at least 5 names of or 5 examples of scalar quantities and 5 examples of vector quantities. Okay. So here, like Alright, sir. we have distance, speed, time, mass. These are the scalar quantities, and respectively we have displacement, velocity, acceleration, weight, force, tension, friction, electric field. Right? All these are vector quantities. Okay. Yeah, sir. All right. Now, the whole kinematics is based on the thing we call SWAT, SUVAT, right? The whole kinematics is actually based on SWAT. Wow. Yeah, SUVANT. Now, S as mentioned over here, S for Speed. no. That's a mistake. S is not speed. S Okay. is always distance or displacement in physics. In physics, beta, Okay. yeah. In physics, we represent distance and displacement by the letter S. Okay, Okay. good. Now, U and V both, they are used to represent velocities. All right. U for initial Alright. velocity. Yeah. U for initial speed or initial velocity. V for And V for final. final. Yeah, exactly. And both are measured in meters per second. You have to memorize their units as well. The units, okay? The units as well. Okay. The velocities or the speeds both are measured in meter per second, correct? Now, A stands for acceleration. A stands for Acceleration. acceleration. And I'll just tell you what is acceleration is and T for time. So is it okay? Yeah, sir. Any problem? No, sir. So what we have to memorize is that we have to remember is that the whole chemistry, the kinematics is actually based on SWAT, SUVAT, where S for distance or displacement, U and V for the speed or velocity, A for acceleration, and T for time. Getting it, boy and girl? Yeah. All right, beta. आगे चलते हैं. Now we have two words or two terms called speed and velocity. Now we'll find their difference. The difference between them is speed is actually distance covered per unit time, right? Yes, sir. Whereas velocity is the rate of change of displacement. Now I would recommend that whenever this velocity comes in the exam, you have to write the definition of velocity. Use the word the rate of change. Rate of change of displacement. Now, why I am saying rate of change? Because this will give you this jargon, rate of change. It's a technical jargon, right? It's technical wording. Okay. And Cambridge examiner, they like the technical wording. Okay. तो अगर आप टेक्निकल Okay. वर्डिंग में लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा अच्छे चांसेस है मार्क्स मिलने के, राइट? तो रेट का Okay, sir. हाँ, द वर्ड रेट का मतलब क्या होता है, ये आइडिया? सर रेट मतलब कितने हिसाब से कोई चीज चल रही है किस पर्टिकुलर well, टाइम पे. No, listen. रेट का मतलब बेटा हमारे फिजिक्स में होता है डिवाइड बाय टाइम. क्या मतलब होता है? डिवाइड बाय टाइम. Yeah, variation with respect to time. Got it? Respect to time. Any problem? No, sir. अच्छा, अब बेटा there are two. Now the next minute says two moving objects are said to have the same velocity when they have the same speed and move in the same direction. However, देखो अब मुझे एक बात बताओ. They a person was here, A, went to B. Okay. Now there are two ways to go there. Now, in the first way, was it a speed or velocity? Sir, was speed.
The first, it was speed as well as velocity, both. You can talk of both. But in the second one, it would be only speed. Why only speed, beta? Sir, Because of it's no not proper direction. Because of no proper okay. डायरेक्शन. Direction. ठीक है ना, डायरेक्शन होगी बेटा तो वेलोसिटी बनेगी, डायरेक्शन नहीं होगी तो वेलोसिटी नहीं होगी. गॉट इट सो फार? बात क्लियर Yeah, है? sir. अच्छा, नाउ बेटा वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एग्रीड. ठीक है जी. वेलोसिटी की Yeah. सेकंड डेफिनेशन क्या बनेगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आई मीन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ये बन गई थर्ड फॉर्मूला वाइज. तीसरी बेटे क्या बनेगी? स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. वेलोसिटी का दूसरा मतलब क्या होता है? Speed in a specific या direction. स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है बेटे? Okay, sir. ऑलराइट. तो अब इस याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटीज कैन नेवर बी नेगेटिव. याद रखिएगा, स्केलर्स कैन नेवर बी नेगेटिव. हाउएवर वेक्टर्स जो होते हैं बेटा वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. ये बात याद रखिएगा. Okay, sir. तो इट मींस स्पीड हमारी नेगेटिव कभी नहीं होगी. स्पीड हमारी नेगेटिव कभी भी नहीं होगी. कभी नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो सकती है. हो सकती है. इसीलिए हम ग्राफ बनाएंगे ना बेटे, तो अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे बन रहा है तो इट श्योरली वुड बी द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. लेकिन अगर ग्राफ मेरा ऐसे बन रहा है इस तरह से, तो इट श्योरली वुड बी द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. Time graph. गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेगेटिव साइन इन फिजिक्स? फिजिक्स में नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? जैसे मैथ्स में नेगेटिव Sir, क्या होता है? मैथ्स में तो नेगेटिव लॉस, number डिक्रीज, loss. लॉस, डिक्रीज, राइट. और फिजिक्स में बेटा नेगेटिव का एक ही मतलब होता है. क्या मतलब होता है? सिर्फ एक मतलब होता है, दैट्स कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? Opposite direction. तो जब भी फिजिक्स में आपके पास नेगेटिव साइन आएगी, इट मींस इट्स अपोजिट डायरेक्शन. विल यू रिमेंबर दिस? Yeah, sir. अच्छा, जो बातें मैंने अभी तक बताई आपको समझ में आई? See, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. Now, there are two objects. One object has a velocity of plus 5 meters per second. The other object has a velocity of minus 5 meters per second. क्या फर्क है दोनों में बेटे? Sir, that is an opposite direction and that is a straight direction. Good. Right. You can say the first one is in the forward direction and the second one is in the and backward there is direction. a backward direction. जी Yeah. जी 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 जी. Got it? Any problem? Yeah, sir. Any problem so far? No, sir. पक्का? See, sir. Okay जी, आगे चलते हैं. Now, acceleration. What is acceleration, by the way? Sir, change in velocity. Again, I would appreciate you will use, because यहाँ पर नीचे टाइम आ रहा है, टी आ रहा है नीचे, G. तो I would appreciate you use the word rate of change. Okay. Rate of Change of velocity. change of velocity. If you check the marking scheme ना, if you check the examiner reports, तो उसमें वो कहता ये है examiner reports में कि the rate of change of velocity is the more physical definition, right? Because it shows the technical jargon. लेकिन अगर आप लिखते हैं change in velocity, तो वो एक नॉर्मल बात हो जाती है. अच्छा, मुझे बताओ बेटा, चेंज हमेशा क्या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या नेगेटिव भी हो सकता है? सर पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है. Great. It means if change can be both positive or negative, so we have three types of presentation of acceleration, right? What? अगर मेरा change positive है, अगर मेरा change पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा 2 मीटर्स पर सेकंड. कितनी थी? 2 मीटर्स पर सेकंड. और वो चेंज हो गई किसके अंदर? चेंज हो गई 5 मीटर्स पर सेकंड के अंदर. तो व्हाट आई से, इज इट इंक्रीज इन वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी? डिक्रीज इन वेलोसिटी बेटा, फ्रॉम 2 to 5.
Increase. Increase in velocity. It's increase in velocity. Now, whenever Yeah. speed is increasing, whenever velocity is increasing, we say object is accelerating or a positive acceleration. So far, okay? Yes, sir. Good. On the other hand, if this would be the case like this, अगर वो वहां से यहाँ आ रहा हो तो क्या होगा बेटा? सर स्पीड तो डिक्रीज होगा. या डिक्रीज होगा. स्पीड इज डिक्रीजिंग. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसलरेशन जी. भी कहते हैं. हम राइट? कहते हैं. क्लियर? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. श्योर इनफ? Yes, sir. अच्छा जी. Now, in order to understand these kinematics things, you have to deal with the graphs thingy. Okay. Now, what the Yeah. graph is? Now, you have to understand and memorize the shape of the graph. पहली बात तो याद रखो बेटा कि now we Yes, have sir. two types of graphs in kinematics O levels के अंदर. एक होता है distance versus time graph. जी. Distance और displacement whatever. ठीक है. और दूसरा होता है velocity versus time graph. Okay. Okay, sir. अब हम पहले बात करते हैं. अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपको मैथ्स आता है? जी. जी. ओके जी. तो बेटा मैथ्स में हम कहते हैं कि इफ वी हैव अ ग्राफ, तो हम ग्राफ कहाँ प्लॉट करते हैं? पहले बताओ. शाबाश. सर ग्राफ हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं. गुड. वी प्लॉट ग्राफ ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड वट एवर द लाइन वी हैव उसका एक ग्रेडियंट निकलता है. एग्रीड और नॉट? जी सर. निकलता है ना? ग्रेट. तो अभी तीन बातें याद रखना: एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ग्रेडियंट. ठीक है बेटा? ठीक है सर. नाउ इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम आएगा. क्या आएगा? टाइम. वाई एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी एस आएगा. ओके. ओके सर. और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या देगा? इसका ग्रेडियंट क्या होगा? इसका ग्रेडियंट सर इसका ग्रेडियंट वेलोसिटी होगा. वेलोसिटी होगा. इसका ग्रेडियंट क्या होगा? वेलोसिटी. वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? जल्दी बोलो. शाबाश. स्पीड की डेफिनेशन क्या है? जल्दी बोलो. सर रेट ऑफ चेंज ऑफ. फॉर्मूला वाइज बताओ. डेफिनेशन बताओ. फॉर्मूला वाइज क्या डेफिनेशन? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेरी गुड. रेट ऑफ चेंज ऑफ. नहीं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब मुझे बताओ ग्रेडियंट क्या होता है? वाई ओवर एक्स. जी. वाई ओवर एक्स होता है ना? जी. तो अब फॉर्मूला नहीं याद आ रहा आपको? m इज इक्वल टू स्पीड अपॉन y2 टाइम. माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ये फॉर्मूला था ना हमारे पास? स्लोप ऐसे. स्लोप. जी. तो स्लोप में बेटा ऊपर y आता है, नीचे x आता है ना? जी. y पे आपने क्या रखा? डिस्टेंस. एस. x पे क्या रखा आपने? distance. टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बनेगा? टाइम. वेलोसिटी. शाबाश. दैट्स व्हाई वी से स्लोप कह लो यार, स्लोप कह लो या ग्रेडियंट कह लो, इट इज वेलोसिटी. बात क्लियर है? जी सर. पक्का? जी. गुड. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे बेटा टाइम आएगा हमेशा, वाई एक्सिस पे बेटा वेलोसिटी आएगी, और इसका जो ग्रेडियंट होगा जिसको आप स्लोप कहते हो वो क्या देगा बेटा? वो एक्सेलरेशन देगा. गुड गर्ल, गुड गर्ल. अब चलो भाई पहले पे आ जाओ. पहला क्या कहता है? शाबाश, जल्दी बताओ मुझे. पहला कहता है सर भाई ये बॉडी एट रेस्ट. एट रेस्ट का मतलब स्पीड क्या होगी? स्टेशनरी. हाँ, स्टेशनरी. Sir, गुड गर्ल, गुड गर्ल. स्टेशनरी एट रेस्ट. स्टेशनरी. वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. जीरो. तो ग्रेडियंट कितना होगा? Zero. स्लोप कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ Sir, है तो straight स्ट्रेट line. लाइन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन. और अगर वीटी ग्राफ है तो कहां पर होगे आप? टाइम एक्सिस के ऊपर. आप कहां पे होगे? टाइम. क्योंकि हाँ, ओनली ऑन द टाइम एक्सिस योर वेलोसिटी इज जीरो. ओनली ऑन द टाइम एक्सिस योर वेलोसिटी इज जीरो. गॉट इट? ओके सर. पक्का? यस सर. सेकंड वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस नॉट चेंजिंग और कांस्टेंट. यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब क्या होता है? कांस्टेंट. हाँ, यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब होता है कांस्टेंट. ओके, नॉट चेंजिंग और कांस्टेंट. क्लियर है? जी नॉट सर. चेंजिंग और कांस्टेंट. अच्छा जी, Constant. वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही. वेलोसिटी एक एसटी ग्राफ के अंदर वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप. जी. और स्लोप आप देखें कांस्टेंट आ रहा है ना? जी. और इंक्रीज हो रहा है.
I know slope constant है, it's not called increasing, it's a जी। constant gradient, constant gradient. ओके सर। तो कहते हैं constant gradient, इसे हमेशा constant gradient कहेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है? ठीक है सर। और ठीक है VT सर। VT ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन। VT ग्राफ के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से। ST ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे? बाय अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। क्लियर है? ग्रेडियंट। जी सर। शाबाश। अच्छा जी, अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा? सर आप ग्राफ के नीचे वो बनेंगे, आप ग्राफ के नीचे जी बनेंगे ना? जी गुड। और आपका स्लोप जो है नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप आपका क्या हो देगा जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। गुड गुड। अब आज बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज meant by acceleration? चेंज इन स्पीड, isn't it? कंप्लीट। है ना? तो देखो यस सर। इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, बिकॉज स्लोप इज ए ना। तो आपके VT ग्राफ में बेटा वी हैव कांस्टेंट स्लोप। अच्छा फातिमा, मैं तेज तो नहीं हूँ ज्यादा? जी। मैं तेज हूँ? नहीं नहीं सर। सही हूँ? नहीं नहीं सर, आप हाँ, सही स्पीड पे चल रहे हैं। गुड ग्रेट। तो मेरा बेटा क्योंकि देखो अभी ना 4-5 क्लासों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए एक्चुअली आई इन हरी। ओके, तो VT या सर, या VT कंप्लीटली अंडरस्टैंड। या VT ग्राफ में बेटा द स्लोप इज जी। कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां पर हमारा स्लोप कांस्टेंट है, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? ओके। गुड गर्ल। अच्छा, यही एक्सेलरेशन अगर तो ST ग्राफ में होगा तो कर्व अप शेप बनेगी। कैसे? इट्स कर्विंग अप। इफ आई जस्ट राइट फॉर यू, इट्स कर्विंग अप, दैट इज नीचे से ऊपर जाके यूं जा रहा है ऊपर, ठीक है? इट्स कर्विंग अप। क्लियर है? ओके। एनी प्रॉब्लम? या सर। नो सर। ओके बेटा। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म डिसेलरेशन हो तो क्या होगा? व्हाट इज मेंट बाय बाय द वे, व्हाट इज मेंट बाय डिसेलरेशन? सर जब आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाए। गुड गर्ल। देखो यहां पर क्या स्पीड होगी? अज्यूम कर लो 20 थी इस जगह पे ना, कितनी स्पीड थी? जी 20। 20। तो बेटा यहाँ नीचे क्या होगी? सर 19। कम कम होगी ना, ऑब्वियसली कम 18। होगी। या एग्जैक्टली एग्जैक्ट। जी। हाँ, ठीक है। या फिर 15 होगी, यानी कि योर सी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इट्स डिसेलरेशन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। एनी प्रॉब्लम? यस। अच्छा बेटे, नो सर। याद रखिएगा VT ग्राफ के अंदर, VT ग्राफ के अंदर if we have a constant line, straight line, it means constant acceleration. VT ग्राफ के अंदर, VT ग्राफ के अंदर if we have a constant line, constant gradient, तो it's called constant acceleration. But if we have curves like this, it means that means increasing or decreasing. non-uniform acceleration. It's called non-uniform acceleration, right? So this is increasing acceleration. This is decreasing acceleration. So far okay? कोई मसला बेटा इसके अंदर? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? पक्का? जी सर। लॉक कर दूं? जी सर। Okay बेटा, so we saw this thing. Now let's apply all this whatever you have understood into the past papers, because the most important thing is past paper. Now your course code is 5054. You know it, na? 5054. All right. Sir. So here comes a question. Says section A, answer all blah blah blah. Now figure 1.1 shows the speed time graph for a car. Which graph is this? Speed time graph. Okay, क्या हो रहा है? Distance and distance. No. It's a speed time. It's a speed time. Okay. क्या हो रहा है बता सकती हो? सर पहले कांस्टेंट है, उसके बाद नहीं, पहले तो सर आपकी वो है स्टेशनरी है। नहीं मेरा बेटा, हाउ कम स्टेशनरी? आपकी स्पीड कहां से शुरू हो रही है? सर 11 नहीं 11.5 से somehow 11.5 से ना, 10 11 11.5 12, हाँ 11.5 से। तो 11.5 पे मेंटेन है ना यार यहाँ तक? जी कांस्टेंट है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है। तो what do you call this thingy? What do you call this? सर constant speed. शाबाश, it's a constant speed. It's a constant speed. And what do you call the region from between 15 to 20 seconds? इसे क्या कहोगे?
सर इससे हम कहेंगे 15 to 20 सेकंड से रात में डिक्रीज हो रही है। शाबाश, डिसेलरेशन कर रहा है, गुड गर्ल। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना उसमें चाह रहा था, मिस हो गया। ये देखो बेटा, द इन वीट ओनली इन वीटी ग्राफ, दिस इज स्पेशली फॉर वीटी ग्राफ, दिस इज स्पेशली फॉर वीटी ग्राफ। ग्राफ इन वीटी ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू, क्या देता है पता है कुछ? सर एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस डिस्टेंस। या कवर। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सर इसमें आप वो इसमें अब आप फिर वो लगाएंगे ना एरिया सर, जी एरिया वाला बिल्कुल, मैथ्स का, यस यस, मैथ्स के एरियाज के फार्मूले, मैथ्स के एरियाज के फार्मूले लगाएंगे हम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। Okay, Ji, let's switch the question. Let's solve the question. It says that time t equals 15 seconds, the brakes are applied and the car comes to rest with uniform deceleration. Means at 15 seconds, you applied the brake. Okay? I just make it a bit. Okay. At 15 seconds, T15, you applied the brake, car decelerates, comes to rest in 20. Okay? State the speed of the car just before the brakes are applied. Now, here is a very important thing. You have to keep in mind, very, very important thing. But physics में जब भी वर्ड स्टेट आएगा, क्या मतलब है? स्टेट का मतलब क्या है? नो कैलकुलेशन। स्टेट का मतलब क्या है? नो कैलकुलेशन। नो कैलकुलेशन। रीड फ्रॉम द ग्राफ, क्या मतलब है बेटा? रीड फ्रॉम द ग्राफ, नो कैलकुलेशन, रीड फ्रॉम द ग्राफ। तो अगर मैं इसको ग्राफ से देखता हूं, मैंने कहा कि यार बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड पे हमारी क्या स्पीड है? हमने कहा ब्रेक यहाँ अप्लाई हुए, ये कितनी थी बेटा? ये 0 to 5 है ना, तो each 2 belongs to 1, each 2 small box each to 1 है ना, तो ये कितना बेटा? तो ये होगा सर 11.5। गुड गर्ल। तो आंसर क्या आएगा बेटे यहाँ पर? स्पीड इज इक्वल टू 11.5। अच्छा, इफ यू राइट 11.5, चांसेस आर यू विल लूज योर मार्क। बोलो, पूछो क्यों? क्यों सर? इसलिए कि मैंने मीटर पर सेकंड नहीं लिखा। यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, कंपल्सरी हैं, यूनिट्स आर कंपल्सरी। ठीक है बेटा, मेमोराइज दीज थिंग। आगे चलते हैं भाई। आगे कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। बताइए शाबाश, क्या होता है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन? सर दैट द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। देखो, हाँ, अब ये है कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। क्यों सर? आपने क्या कहा, दोबारा बोलो। एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, लेकिन वर्ड है यूनिफॉर्म, इसका मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिसेलरेशन में एक्सेलरेशन तो कम नहीं हो सकता ना जी। तो आप लिखेंगे स्पीड और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्पीड और वेलोसिटी डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ओके, ठीक है ना, आपकी ठीक है स्पीड या सर। वेलोसिटी यूनिफॉर्म डिक्रीज कर रही है। गुड गर्ल, बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। आगे चलते हैं भाई। ये देखिए, ये जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, पेपर फंसते रहेंगे। Alright, what it says a trolley travels at a constant speed of 18 meters per second for 15 seconds. At time T15, the brakes are applied and the lorry slows down with the same deceleration as the car. On figure 1.1, draw the speed time graph for the lorry. Okay, ji, same. I'm sorry. Same figure 1.1, we are going to draw the graph of a lorry where the lorry travels at a constant speed of 18. 15 मिनट तक, 15 सेकंड तक, फॉर 15 सेकंड उसकी स्पीड कितनी है? 18। 18। ओके जी, वी गो टू 18। ऑलराइट, मूव। ओके जी, वेयर इज योर 18? टेल मी सर 18 आना चाहिए आपका। और बॉक्स नीचे जी, यहाँ आएगा ना? तो सर 18 यहाँ। Are you sure? So what you will do, you will draw a line from here till here. Okay? Yes sir. Obviously you will use the scale. I'm not using the scale, so that's why I'm drawing. Yeah. Okay. Now there is a keyword. Can you tell me what is the keyword over here in the question? In the question, what is the keyword? Can you tell me? Sir, you बताओ शाबाश, क्या keyword है? Should I tell you? sir that the
same deceleration as the car. हाँ, अच्छा अब इस सेम डिसलेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे, बता, आइडिया है कुछ? Sir. No, sir. मैथ्स का एक रूल है, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन इट और नॉट, कि टू लाइंस इफ दे आर पैरेलल देयर स्लोप्स वुड बी इक्वल, फॉर टू पैरेलल लाइंस देयर स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आपसे कहा Equal. गया, आपसे कहा गया कि सेम डिसलेरेशन है, अगर डिसलेरेशन सेम है तो क्या चीज सेम होगी? No. स्लोप सेम होगा, isn't it? Yes, sir. Right. That means we'll draw a parallel line parallel to this one. ठीक है, बिल्कुल पैरेलल, यानी कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक। गॉट इट? Okay. एंड ऑब्वियसली इट विल कट समवेयर ओवर एट 25 पे कट करेगी आके वो, इफ यू विद द स्केल तो आपको सही हो जाएगा। तो ये तो कीवर्ड क्या था, इंपॉर्टेंट बेटा क्या है? लुक फॉर द कीवर्ड्स, लुक फॉर द कीवर्ड। Okay, sir. हाँ, Keywords. Okay. with the same deceleration of the car. Got it? Any problem so far? Important, sir. समझ में No, आया? sir. समझ में आया? G, sir. अच्छा, do you have the past paper at home? Yes, sir. I have the physics paper 1 and paper. Acha, now one more important question. It says explain how your graph that you just have drawn, how your Yes. graph shows that the while braking the lorry travels further than the car. आपका ग्राफ कैसे बताएगा कि आपके ग्राफ, आपके लॉरी ने कार से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है? आपका ग्राफ कैसे Sir, बताएं? शाबाश, सॉरी, या बताएं। क्योंकि वो 15, क्योंकि उसकी जो स्पीड है सर वो उससे लॉरी से ज्यादा है। नो 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 स्वीटहार्ट, हमें क्या बात नहीं, कह sir. रहा है, क्या कह रहा है वो, क्या फाइंड करने को कह रहा है? सॉरी, क्या ब्रेक फाइंड करने को कह रहा है? क्या चीज डिस्कवर करने को कह रहा कि है? वो कार से हाँ, बोलो 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 बोलो। आगे जैसे लॉरी ने ट्रैवल किया। नहीं नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, फर्दर, फर्दर का मतलब फर्दर क्या है, क्या बात कर रहा है, फर्दर में क्या पूछना चाह रहा है? सर वो डिस्टेंस पूछना स्पीड। चाह रहा है मेरा ओके, बेटा, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस ओके। पूछना चाह रहा है। और ओके सर। हमने आपको बताया कि वीटी ग्राफ के अंदर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ होता है। जी सर। तो भाई ब्लैक ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो छोटा ट्रेपेजियम बन रहा है, रेड ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो बड़ा वो ट्रेपेजियम बन बड़ा रहा है, ट्रेपेजियम बन तो इट रहा है। मीन ज्यादा डिस्टेंस होगा, इजंट इट? जी। So what यस you will सर। write over there, what you will write over there, you will say that the graph for the lorry covers more area on the मोर graph. दिस। Yeah, that's why more distance covered. ठीक है ना? उसने कहा शो कैसे होगा, ओके। उसने कहा आप एक्सप्लेन करें कि ग्राफ कैसे शो कर रहा था। आप बोलेंगे the graph for the lorry makes a big trapezium bigger than that of car, so that's why it predicts, yeah, it shows that it's covering more distance. Got it? गॉट इट सर। ऑलराइट बेटा। अच्छा अब पता क्या था, मुझे थोड़ा सा एक्चुअली टाइम मैंने पहले से आपकी सेट कर दी थी, तो इट वाज आई मीन डिजाइन फॉर 30 मिनट्स। तो लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल बेटा मैं आपको क्लास दूंगा। आपको आज जो मैंने बताया है, आपने अब क्या करना है, पास पेपर खोलने हैं बेटा, एमसीक्यूज खोलने, एमसीक्यूज खोलने, ठीक है जी। और एमसीक्यूज खोलने के बाद आपने आपने वैसे भी एमसीक्यू 10:30 बजे आना था, 10 बजे तक निकलने वाली क्या है 10 बजे बाबा Someone is there? फोन करेंगे। Can you guys go outside, please? All right. Yes, sir. Over here. अच्छा जी, अब व्हाट विल डू, यू विल ओपन योर पास्ट पेपर्स, Yeah. और अपने पास्ट पेपर में आप एमसीक्यूज भी देखेंगी काइनेमैटिक्स वाले, और थ्योरी क्वेश्चन भी देखेंगे बेटा काइनेमैटिक्स वाले। Okay, sir. आर यू देयर? Yes, Alright. sir, I'm there. तो वी हैव जस्ट 10 मिनट्स मोर, इसमें हम इसको कवर करते हैं, ठीक है, देन वेटिंग विल बी ओवर, ठीक है ना? अच्छा जी, Sir, बोले। these are the past papers like tropical. जी जी, They- ट्रॉपिकल, जी They जी, would be in the ट्रॉपिकल, tropical past paper, right? Okay. हाँ हाँ, यू विल गेट देम, यू विल गेट देम। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आ गया, इट्स अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इट सेज आई एम हियर नाउ, Yeah, sir. when a car driver sees an emergency ahead, he applies the brakes. During his reaction time, the car travels at a steady speed and covers the Speed. distance known as the thinking distance. अच्छा, आपने पढ़ा है thinking distance, braking distance and stopping distance? पढ़ा है आपने? सब कुछ नहीं पढ़ा? Sir,
पढ़ा है लेकिन Okay, याद नहीं आ रहा सर। just be with me. देखो, while you are cycling, अगर आप साइकिल चला रही हो, सामने से एक फुटबॉल आती है, सामने से एक फुटबॉल गली से निकल के आती है, फर्स्ट इंप्रेशन दिमाग में क्या आता है कि फुटबॉल के पीछे कौन कि आएगा? ब्रेक लगानी। हाँ, ब्रेक लगा लूं, एग्जैक्टली, फुटबॉल के पीछे बच्चा आ रहा है, तो आई हैव टू अप्लाई ब्रेक। तो आप Yeah. ब्रेक जो सोचती हो और ब्रेक दबाने में कितनी देर लगती है? सर 1 सेकंड। एक्सीलेंट, बहुत कम टाइम लगता है ना, शॉर्टेस्ट टाइम लगता है, राइट? इट मींस द टाइम इन विच यू डिसाइड इज कॉल्ड थिंकिंग टाइम, राइट? या और उस टाइम के अंदर जो भी साइकिल डिस्टेंस कवर करेगी वो कहलाएगा थिंकिंग डिस्टेंस, राइट? ओके। नाउ मुझे बताओ that in that shortest time when you decide to apply the brake, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कम होती है, ज्यादा होती है, या नॉर्मल रहती है? सर कम होती है। नहीं नहीं, आपकी यानी कि आप एकदम तो ब्रेक नहीं अप्लाई किया ना अभी, आप यानी जब डिसाइड नहीं सर, करती हो तो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उस वक्त तो स्पीड वही होती है ना जो आपकी जिसमें चल रही थी आप। जी। तो इसका मतलब ये कि थिंकिंग टाइम में स्पीड कांस्टेंट होती है, एंड व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, या एंड व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, इजंट इट? फ्रीज हो जाती है। ऐसे ही है? जी सर। गुड। नाउ हियर इज द ग्राफ, डिटरमाइन द थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? कौन सा डिस्टेंस? जल्दी बोलो, शाबाश। सर 30 से 1 तक का आप नहीं, उसका वो निकाल लेंगे। वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस में तो क्या सर- चीज कांस्टेंट होती है? स्पीड Speed. कांस्टेंट होती है। क्या चीज कांस्टेंट होती है? स्पीड। स्पीड कांस्टेंट होती है। और थिंकिंग टाइम बहुत छोटा टाइम होता है, राइट? जी। और हमें हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में? स्पीड स्पीड ओवर टाइम। ना ना, डोंट अप्लाई नहीं नहीं। डोंट अप्लाई Okay. फॉर्मूलाज। कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस निकालते हैं हम एरिया अंडर द ग्राफ में। कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। जी। तो यहां पर थिंकिंग टाइम कहां पे खत्म हो गया है? सर 1 पे खत्म हो 1 पे गया। खत्म हो गया है। तो बेटा 1 से यहां तक हमारे पास कौन सी शेप बन रही है? इस शेप का नाम क्या है? इस शेप का नाम सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, एम आई राइट? टू ब्रेथ। यस तो हाउ मच लेंथ इज और हाउ मच हाइट इज दैट? 30 सर 30 times and 1, 1 that goes to 30. Is it? 30। हाँ, आगे आगे क्या लिखूंगा? जल्दी बोलो शाबाश, क्या लिखूंगा आगे? सर मीटर पर सेकेंड। बेटा सिर्फ मीटर। ओके। इट्स अ डिस्टेंस बेटा, इट्स अ डिस्टेंस ना। तो मैं मीटर पर सेकंड Okay, कैसे sir. लिख सकता हूँ? क्या मीटर सर? पर सेकंड कैसे लिख सकता हूँ? ओके, नेक्स्ट वन। क्या कह रहा है? क्या फाइंड करना है? जल्दी बोलो शाबाश। द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? जल्दी बोलो शाबाश। सर जब आपकी स्पीड डिक्रीज होती है। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ, वी हैव टू शेड दिस रीजन, इजंट इट? यस सर। Because in this whole region brakes are applied and eventually Yes, sir. you come to stop. यहाँ पर रुक गए आप आके। Yeah. So what shape you are getting now? A triangle। The triangle. And the formula for triangle is what? 1/2 base Base into multiplied by- height. Apply the formula. Give me Yeah. the values. Half base कितनी है बेटा? जल्दी बोलो शाबाश। How much is Sir, the base? 5 हाँ? 5 First mistake. 5 First mistake. आपकी triangle Sir. कहाँ से शुरू हो रही है? 1 नहीं। हाँ, 1 से शुरू हो रही है। तो बेटा 1 से 5 तक कितना टाइम बना, ये बताओ चंदा। 6 7 8 9 10 ओए होए 15 सर 15। मेरा बेटा, 1 से 5 तक जो टाइम है दैट इज ओनली 4 सेकेंड्स। कितना? ओके सर। कैसे पता चला? कैसे पता चला? वी ऑलवेज अप्लाई द फॉर्मूला, याद रखना जिंदगी भर। फाइनल माइनस इनिशियल। क्या अप्लाई करते हैं फॉर्मूला हम? फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल टाइम? सर फाइनल टाइम इज 5 5. What is the initial time? 1 Subtract it. What do you get? 4। So that's why 4 is base. Height. ओके सर। Height निकालो, कितनी height है? सर 30। Same formula, same formula. Final is 30. अच्छा। Say final is 30 30. Initial was what? How much was the initial? यहाँ पर सर 0 शाबाश, 30 minus 0 is 30. You 30 plug in 30 there. 2 ones are 2, 2 15s are 30, 15 fours are 60. Right? So what I'll write here? Unit बोलो जल्दी शाबाश। सर 60 मीटर। Meter. Good girl. Because it's a distance. Okay. Clear? Yeah, sir. Very good. Yes. Very good. Next is the deceleration of the car during braking.
हाँ भाई, ब्रेक कब लगे, जल्दी बोलो शाबाश, ब्रेक कब लगे? सर 30 पे ब्रेक लगा है आपका। हाँ, 5 नहीं नहीं नहीं, 1 सेकंड पे ब्रेक लगा है, 1 ओके 1 सेकंड पे ब्रेक सेकंड लगा है, और वो ऑल द वे 30 से 5 फिर 0 पे आया 5 तक गया। 0 पे आया है, ठीक है ना? तो जी एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो शाबाश। A इज इक्वल टू सर इक्वल्स टू फाइनल V माइनस वेलोसिटी U अपॉन T, राइट? टी। यस सर। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, जल्दी बोलो शाबाश। सर फाइनल वेलोसिटी आपकी 5 0 है बेटा, 0 0 0 इनिशियल और वेलोसिटी जो बोलो। आपकी 30 है। 30, टाइम बोलो, कितना टाइम लगा? सर टाइम है 5 4, 4 4 4 सर। क्योंकि 1 से शुरू हुआ काम और 5 पे खत्म हुआ काम, 5 का 5 हो माइनस गया 1 4, तो 30 डिवाइड बाई 4, गिव मी द आंसर जल्दी। सर माइनस 7.5 माइनस 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इजी। स्क्वायर। यस सर। अब मेरी एक बात सुनो, अगर तुम आंसर माइनस में दोगी यू विल लूज योर मार्क, बोलो भाई। क्योंकि क्यों सर? वर्ड क्या था? डीएक्सेलरेशन। डिसलेशन तो होता ही नेगेटिव है ना, जी तो इसका तो आंसर सर क्या है? साइंस मैटर नहीं करते। नहीं, तो डिसलेशन जब लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ओके सर। क्योंकि डिसलेशन इटसेल्फ इज नेगेटिव ना। नेगेटिव। सो फार ओके, या सर। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। पक्का जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर। ग्रेट, आगे चलते हैं, एक फाइनल क्वेश्चन देन वी स्टॉप। जी ऑलराइट, सो हियर वी गो। अच्छा जी, जब भी ऐसा ग्राफ आएगा याद रखना, शक्ल देखो ना देखो, जी ग्राफ देखो, एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए, इट्स अ पैराट्रूपर ग्राफ, इट्स अ पैराट्रूपर ग्राफ, इट्स अ पैरा ऊपर। हाँ, पैराशूटिस्ट, पैराट्रूपर, व्हाटएवर यू कॉल इट। कैसे पता चला ओके पैराशूटिस्ट ग्राफ है? क्या 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 चेक किया इसका, व्हाट इज द चेक फॉर दैट? सर द वर्टिकल A स्पीड sudden, a ऑफ sudden change, ओके a sudden change in the velocity, a sudden ओके jerk, yeah, a sudden jerk in the velocity means पैराशूट खुल गया। यहाँ पर पैराशूट खुला है, पैराशूट खुलता है जैसे ही एकदम सडन जर्क आता है, जी राइट? जी ये वो कॉन्सेप्ट है सर। जो दिमाग में होने चाहिए मेरा बेटा, ये वो कॉन्सेप्ट है दिमाग में होने चाहिए बेटा। Whenever parachute opens, a jerk is there. All right. So here comes the Okay, sir. question. Question says, state what happens at T20 and T55. Between 20 and 55 क्या हो रहा है? जल्दी बोलो शाबाश। At 20 क्या हुआ? सर 20 पे जो आपका वो था पैराशूट वो खुल गया तो ये 20 पे he opens the parachute. 20 पे क्या हुआ? पैराशूट ओपन। हाँ, parachute is opened. या he opens the parachute. ठीक है जी। और उसके बाद क्या हो रहा है? उस पे क्या हो रहा है? उसके बाद 55 पे जल्दी बोलो शाबाश। 55 पे क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड पे वो नीचे आ रहा है। भाईजान 55 पे एकदम स्पीड ड्रास्टिक ठक करके 0 हो गई, हो गई 0। तो क्या हुआ? ही हिट्स द ग्राउंड, ओके ही हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड। ऑलराइट, सो फातिमा, आई एम रियली सॉरी बेटा, आज थोड़ी सी मुझे नहीं था आइडिया, तो मैंने क्लास टाइम शॉर्ट रखा था। कल वी विल हैव टू सेशंस बेटे, ठीक है? ईच सेशन इज ऑफ 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का सेशन होगा हमारा पहला। तो आई विल स्टार्ट टुमारो एट 8, कल हम 8 बजे शुरू करेंगे, ठीक है बेटा? आज की क्लास समझ में आई आपको? जी सर। ओके मेरा बेटा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपका होमवर्क क्या है? आपने काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करने हैं, और कल आप पहले मुझसे क्वेरीज डिस्कस करेंगे कि सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। चलो ठीक है सर। ऑलराइट, ओके। तरीका बेटा ये होता है कि आप क्लास से पहले मुझे उनकी पिक्चर्स को व्हाट्सअप कर देंगी कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं हुए, ताकि हम जल्दी उनको एक्सप्लेन